Hello, good morning students. Now we are going to next exercise 2.3. Before solving and seeing the sums given in 2.3, just look at two theorem, remainder theorem and factor theorem. Basically both are same. First look at remainder theorem. What is the meant by remainder theorem here? If p of x is divided by linear polynomial x minus a, then remainder is p by a. You know, in numbers, if you want to find remainder, then you have to go through process of division. Okay, means you have to do division process. At last, you will get remainder. Remainder may be 0 or remainder may be any numbers. I am talking about numbers only, not polynomial right now. Okay, so that you know, means if you want to find remainder for numbers, if any number is divided by another numbers, then remainder can be found by division only. But if polynomials is any one polynomial is divided by another, and particularly that polynomial divisor polynomial is linear. Divisor means you know by which you are going to divide. Okay, if linear divisor polynomial is there, then without actual division you can find remainder. Without actual division you can find remainder whenever it is case of polynomial, not number. Okay, so how? So again read that statement. If p of x means you understand any polynomial, actual polynomial is not given, maybe any polynomial is divided by linear polynomial. Linear means you know, linear, quadratic, cubic. So linear means having 1 degree only. So look there, x having 1 degree only. X minus a may be any constant number, 1, 2, minus 1, minus 2, any number. Okay, fraction also, 1 by 2, 1 by 3, minus 1 by 2. Then remainder is p of a. So you no need to divide that given polynomial by x minus a, but just find out p of a. So whatever you get will be remainder only. Okay, I given one example. If p of x is divided by x minus 1, then p of 1 is a remainder. How to find p of 1, that you already know. We already practiced this in exercise 2.2. Okay, just in place of x write down 1, simplify. Whatever you get will be remainder. But why p of 1? Because there is a x minus 1 given. समझिए, वहां पर x माइनस 1 है तो यहाँ पर मैंने प्लस 1 लिया, p ऑफ 1 लेना है. और ऊपर के स्टेटमेंट में भी देखो, मेन स्टेटमेंट x माइनस है तो p ऑफ a फाइंड करना है. वो p ऑफ a खुद ही रिमाइंडर बनेगा. यहाँ x माइनस 1 है तो p ऑफ 1. और अगर x प्लस 1 से मैं डिवाइड करूँ, अगर मेरे डिवाइजर पॉलिनोमियल x प्लस 1 है, कोई भी पॉलिनोमियल के लिए p ऑफ x में भी एनीथिंग, ओके, एनी टाइप ऑफ, तो मैंने x प्लस 1 लिया है तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, p ऑफ माइनस 1. तो समझ गए आप, x के पीछे जो है ना इसका ऑपोजिट. या तो ऐसे बोलो ना, जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है ना इसका 0, डिवाइजर पॉलिनोमियल है इसका 0, ब्रैकेट में क्या रखना है, तो डिवाइजर पॉलिनोमियल का 0. देखो x माइनस 1 है, इसका 0 कैसे फाइंड करते हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ना. x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखो तो आपको x इक्वल टू 1 मिलेगा. मैं नंबर एग्जाम्पल में 1 नंबर की बात कर रहा हूँ. ऐसे ही सेकंड नंबर में देखो, x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखो तो x आपको क्या मिलेगा, माइनस 1. ऐसे तो आपको ओरली भी पता हो गया है, लेकिन लीगली आपको फाइंड करना है तो ब्रैकेट में क्या रखेंगे x की जगह, वो आपको कहाँ से मिलेगा, डिवाइजर में से. डिवाइजर इक्वल टू 0 करके x फाइंड कर लो, मतलब डिवाइजर का 0 फाइंड करो. तो ब्रैकेट में क्या रखना है पता होगा. अब बोलेगे सर हमें तो ऐसे ही पता हो बताते हैं, पीछे माइनस है तो प्लस रखो, प्लस है तो माइनस रखो, लेकिन कभी कभी फाइंड भी करना पड़ता है. मान लो कि 2x प्लस 1 है तो आपको रियली x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. ओके, यहाँ तो मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है तो आप इजीली, तो मतलब समझ गए आप, रिमाइंडर कैन बी फाउंड डायरेक्टली विदाउट एक्चुअल डिवीजन. सो दैट इज द रिमाइंडर थ्योरम. ये आप समझ गए. और मैं आपको फैक्टर थ्योरम सिखाने से पहले एक दूसरी बात पर ले जाऊँ. आपको पता है फैक्टर किसको बोलते हैं? We already discussed this term in very first lecture of this lesson. Factor is the number or polynomial which divide the number or polynomial
विथ रिमाइंडर 0। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो इसको फैक्टर भी बोल सकते हैं, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं बोल सकते, ओनली डिवीजन करते हैं। तो मतलब इसके पर से फैक्टर थ्योरम आया। अभी मैं फैक्टर थ्योरम देखने से पहले ऐसे बोल दूं कि अगर पी ऑफ ए 0 होता, रिमाइंडर पी ऑफ ए मिला, मान लो कि वो 0 होता तो x माइनस ए को हम फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो देखो फैक्टर थ्योरम में क्या लिखा, ये पी ऑफ ए 0, पी ऑफ ए 0 मतलब समझ गए रिमाइंडर 0, देन x माइनस ए इज अ फैक्टर। ओके, अदरवाइज उल्टा बोलूँ मैं, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर देन पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो समझ गए आप, 0 है तो फैक्टर बोला जाता है, मतलब फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही होता है। ओके, तो समझ गए आप, रिमाइंडर थ्योरम पर से फैक्टर थ्योरम आया। फिर भी मैंने एग्जांपल लिया है, समझ लो, ये p ऑफ 1 0 देन x माइनस ए इज अ फैक्टर। अदरवाइज उल्टा बोलूँ, इफ x माइनस ए इज अ सॉरी x माइनस 1 इज अ फैक्टर देन p ऑफ 1 0। ओके, सिमिलरली सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है, p ऑफ माइनस 1 अगर 0 है मतलब रिमाइंडर 0 है तो x प्लस 1 फैक्टर होगा। यहाँ भी ऐसी बात है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस ब्रैकेट में। और उल्टा भी बोल सकता हूँ, x माइनस 1 इज अ फैक्टर देन p ऑफ माइनस 1 0। तो मैंने जो अभी दो थ्योरम लिखा विथ एग्जांपल वो आपको याद रखना है, और वो दोनों आपको अपनी फेयरबुक में जो हम इम्पोर्टेंट नोट्स लिखते हैं ना इसमें लिखना है। नंबर देना है तो जो नेक्स्ट नंबर आता है वो नंबर दे दो, या तो डायरेक्ट लिख दो फैक्टर थ्योरम को नेक्स्ट नंबर और रिमाइंडर थ्योरम को इसके बाद का नंबर। ओके, पहले रिमाइंडर थ्योरम लिखो तो भी अच्छा रहेगा, बाद में फैक्टर थ्योरम लिखो। ओके, तो ये आपको आ जाएगा इम्पोर्टेंट नोट्स में फेयर बुक में, जो इतना मैंने पहले पेज पर आपको दिखाई दे रहा है वो ओनली लिखना नहीं है, समझना भी है। ओके, अभी हम ये फैक्ट रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हैं, देखते हैं आगे की एक्सरसाइज में क्या बात है। तो ये है एक्सरसाइज 2.3। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ओपन करके रखो, ऐसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन भी यहाँ लिखा है, फिर भी ओपन करके रखो और रखना ही है डेली, मैं याद नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन 1, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, मतलब p ऑफ x, हम अभी तक इसको p ऑफ x बोलते थे, वो कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ x इज डिवाइडेड बाय। तो सो मेनी सब क्वेश्चंस आर देयर, टोटल 5 सब क्वेश्चंस। एक बार मेथड समझ लो, बात एक ही है लेकिन वैल्यू चेंज होती रहेगी। आपको करना क्या है, पहले तो आपको x की जगह क्या रखना है वो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे x की जगह क्या रखना है, तो जो डिवाइजर है ना x प्लस 1 x माइनस 1 बाई 2 वो सारे डिवाइडेड बाय, मतलब डिवाइजर है, इसके द्वारा डिवाइड किया जा रहा है। ओके, इसको डिवाइजर बोलते हैं। तो इसमें से x फाइंड करो, कैसे, सामने 0 रख के। तो देखो मैंने प्रोसेस भी यहाँ बताई है, साइड में देखो x प्लस 1 इक्वल टू मैंने 0 रखा, मैंने फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। x प्लस 1 0 रखा है तो x इक्वल टू क्या मिला -1, वो मेरे लिए काम का है। क्यों, क्योंकि मुझे x को उठा के इसको रिमूव करके इसकी जगह किसको बिठाना है, -1 को। ओके, बस बाद में हमने आगे किया था ना 2.2 में, बिल्कुल ऐसा है, ओनली इतना ही समझ लो ना, इनिशियल इसकी जगह क्या रखेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो x की जगह में -1 रखूंगा, क्यों रखूंगा, मैंने फाइंड किया है डिवाइजर का 0, डिवाइजर x प्लस 1 है, इसका 0 फाइंड करना मतलब सामने 0 रख के x फाइंड करना। तो मैंने -1 निकाला, बस और कुछ नहीं किया। देखो मैंने पॉलिनोमियल लिखा p ऑफ x, बाद में x की जगह -1 रख दिया, मतलब p ऑफ -1 मैंने फाइंड किया। कैसे किया देखो, डिग्री कोफिशिएंट बाकी सब लिखो लेकिन x नहीं लिखो, x की जगह ब्लैंक ब्रैकेट बनाओ पहले, बाद में ब्लैंक ब्रैकेट सारे बन जाने के बाद में अंदर रखो रिमाइंडर का 0, सॉरी रिमाइंडर का 0 क्या, डिवाइजर का 0, मतलब -1 ईयर, सब जगह रख दिया। ये स्टेप में तो कुछ समझने का है नहीं। इसके बाद देखो -1⁻³ आपको पता है ना, -1 ही होता है, हमने बेसिक में ये सारा सीखा है, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई -1 +1 बनेंगे और +1 इंटू -1 फिर से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। या तो ऐसे याद रखो ना, ऊपर ओड डिग्री है तो माइनस रहेगा, इवन डिग्री है तो माइनस निकल जाएगा। ओके, ऐसे दूसरे में देखो -1⁻² मैंने 1 कर दिया, तो जब कोफिशिएंट है ना तब पहले ब्रैकेट मत ओपन करो, कोफिशिएंट वहाँ भी देखो 3 है, तो पहले डिग्री का काम निपटा लो। तो मैंने देखो पहले ये किया, ब्रैकेट ओपन करने का बाकी रखा है, बाद में
3x 3 मल्टीप्लाई में, इसमें डिग्री नहीं है तो सीधा ब्रैकेट ओपन कर दिया, क्योंकि रेस्ट में तो कुछ है नहीं, 1 है और +1 ऐसे लिख दिया। अभी वो ब्रैकेट बाकी था, मैंने ओपन किया तो 3 1 जा 3। अभी सारा देखो, +3 -3 कट हुआ, -1 +1 कट हुआ, रिमाइंडर क्या हुआ 0। लिख देना लास्ट में रिमाइंडर इज 0 या तो रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो समझ गए, एक सम ठीक से समझ लो, सारी बात आ गई। आज का एक ही पॉइंट है हमारा, रिमाइंडर फाइंड करना है। कैसे करना है अगेन मैं रिपीट करूँ, पहले तो x की वैल्यू निकालो। कहाँ से? डिवाइजर में से। कैसे? डिवाइजर का 0 निकाल के। डिवाइजर का 0 कैसे निकाले? डिवाइजर इक्वल टू 0 करो, x फाइंड करो, और इसको कहाँ रखेंगे? x की जगह, मेन पॉलिनोमियल में, मतलब डिविडेंड पॉलिनोमियल में। बस सिंप्लीफाई करो, लास्ट में जो आया वही 0, सॉरी वही रिमाइंडर, वो 0 ही होता है ऐसा नहीं है, कोई भी होता है। तो यहाँ मैं ऐसा भी बोल सकता, अभी हमने फैक्टर थ्योरम में नहीं बोला था कि अगर रिमाइंडर 0 है तो डिवाइजर को हम फैक्टर भी बोल सकते थे। यहाँ मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, देखो मैं एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ, या क्वेश्चन में ऐसा पूछा नहीं गया। मैं बोल सकता हूँ x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x+1 इज अ फैक्टर। मैं फैक्टर क्यों बोलूँ? क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है। जब रिमाइंडर 0 रहता है तब डिवाइजर को हम क्या बोल सकते हैं? फैक्टर। ओके, तो सारी टर्म्स में आप कंफ्यूज मत होना, हमने सारी टर्म्स पहले सीख ली है। ओके, फैक्टर किसको बोलते हैं, डिवाइजर किसको बोलते हैं, डिविडेंड किसको बोलते हैं, ओके, रिमाइंडर किसको बोलते हैं। तो यहाँ x+1 फैक्टर बन गया, लेकिन हमें फैक्टर के बारे में अभी कुछ नहीं बोलना है, अभी तो ओनली रिमाइंडर फाइंड करके देना है। ओके, अभी दूसरा देखो, x -12 1/2। तो बस ऐसे बिल्कुल फर्स्ट की तरफ मैंने तो पहले x निकाला, सामने 0 रख के, सारे x को रिमूव करके ब्लैंक ब्रैकेट बना के अंदर क्या रख दिया? 1/2। 1/2 रखने के बाद पहले डिग्री सारे की है, तो 1/2 का क्यूब बन गया 1/8। बाद में पहले मैंने 1/2 का स्क्वायर किया, सेकंड टर्म देखो मैं कहाँ आया पता है आपको? देखो मैं ये स्टेप की बात कर रहा हूँ। ओके, मैंने पहले ऊपर की बात करो, ऊपर पहला लाइन की मैंने 1/2 का स्क्वायर 1/4 किया। ओके, क्यों? क्योंकि आगे कोफिशिएंट था ना, पहले बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले में ऑर्डर करना होता है, ऑर्डर मतलब डिग्री करना होता है, तो डिग्री मतलब रेस्ट टू मैंने कर दिया। बाद में और सारे में ब्रैकेट ओपन कर दिया, क्योंकि या तो डिग्री नहीं थी या तो कोफिशिएंट थी। अगर डिग्री और कोफिशिएंट दोनों हैं तो पहले प्रायोरिटी किसको देंगे हम? रेस्ट टू करने में। बस बाद में वो ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, तो देखो फ्रैक्शन सारे 1/8 3/4 3/2 1 को भी मैंने 1/1 बना दिया। समझ गए? मान लो एक फ्रैक्शन है तो सारे को फ्रैक्शन बना दो। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बेसिक में ये सारा किया था, मैंने जो एरो किया है वो देख लो। मैंने क्या किया समझ में आ रहा है? एलसीएम लिया। एलसीएम कैसे लेते वो तो पता है ना आपको, प्राइमरी में से ले रहे हैं, पीछे जाके और रफ में नहीं करते, 8 लिखे 4 लिखे 2 लिखे 1 लिखे, बाद में हम डिवाइड करके आगे बढ़ते थे। तो ऐसे 8 रिमाइंडर आया, सॉरी 8 एलसीएम आया। एलसीएम का मतलब क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सारे नंबर में से कौन सा नंबर लाया जा सकता है? 8। 8 can be obtained from all number, from 8 from 4 from 2 and from 1, और मिनिमम नंबर 16 भी आ सकता है, 24 भी आ सकता है, लेकिन लिस्ट कॉमन मल्टीपल 8 मैंने लाया। लेकिन 8 लाया हो तो ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया? ऊपर तो सब नया नंबर आ गया, 1 6 12 8, वो कहाँ से आया? तो इसके लिए देखो डिनोमिनेटर 8 होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 8 नहीं है तो आपको लाना पड़ेगा। तो पहले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट में 8 ऑलरेडी है, तो मैंने ऊपर देखो इसका 1 ही 1 रख दिया। लेकिन सेकंड देखो, सेकंड में डिनोमिनेटर में 4 है तो मुझे 8 लाना पड़ेगा। तो 8 लाने के लिए मैंने ट्वाइस किया, देखो तो ऊपर भी 3 2 6 बन गया, तो 6 कहाँ से आया समझ गए? ऐसे ही देखो थर्ड फ्रैक्शन में, वहाँ 12 कहाँ से आया? तो इसके लिए पहले डिनोमिनेटर देखो 2 है, तो 2 में से 8 कैसे लाता है? मल्टीप्लाई 4, तो ऊपर भी 3 4 12। ओके, और लास्ट टर्म में 8 कहाँ से आया? तो इसका डिनोमिनेटर देखो 1 है, 1 में से 8 तो लाना ही पड़ेगा ना पहले। तो 1 में से 8 लाने के लिए
मैंने मल्टीप्लाई बाई 8 किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई 8, सो 1 मल्टीप्लाई 8 बन गया। अभी सारे का सम निकालो। 12 प्लस 8 20 प्लस 26 27, सॉरी मैंने कुछ शायद मिस्टेक की है, वो 27/8 है, तो थोड़ा करेक्शन कर लेना, नॉट 28/8, ओके 27/8, ओके सो मेक करेक्शन देयर, ओके यू अंडरस्टैंड। I think I make mistake in next step also, because actually 27/4 8 is not divisible, but 28 I here divided also, okay, so just neglect last two steps, it is 27/8 not 28/8, okay, so correct accordingly। but आपको समझना क्या था वो तो आप समझ गए ना। रिमाइंडर कैसे फाइंड किया जाता है, x की जगह कुछ को किसी को बिठा के, किसको बिठाएंगे, डिवाइजर के ज़ीरो को कहाँ से लाएंगे, डिवाइजर इक्वल टू ज़ीरो करके x को फाइंड करेंगे, इसको वहाँ बिठाएंगे x की जगह पर, बस बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ एक नई स्टोरी आई है, फ्रैक्शन आया, और फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन हम ऐसे तो नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं वो आपको पता है। एलसीएम लाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसका भी प्रोसेस देखो। आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके 8 तो लाना ही पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करो। 8 मैंने अपॉन में रख दिया, इसका मतलब सभी के डिनोमिनेटर मैंने 8 रख दिया, नहीं था फिर भी, इसका मतलब समझ गए, मैंने कहीं ना कहीं कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किया है। सेकंड फ्रैक्शन में 2 से, थर्ड फ्रैक्शन में 4 से, एंड फोर्थ फ्रैक्शन में 8 से मल्टीप्लाई किया, ओके तो 27/8 हमारा आंसर हुआ यहाँ पर, ओके। अभी ऐसे ही सारे में एक ही प्रोसेस है, देखो यहाँ x रिमाइंड, ये डिवाइजर x ही है, तो x इक्वल टू 0 रख दो, सीधा 0 ही मिल गया, मतलब x के पीछे कुछ है ही नहीं, x -2 नहीं है, x -1 नहीं है, x +1 नहीं, ओनली x है, मतलब x इक्वल टू 0, तो रख दो सीधा 0 x की जगह। मैंने आगे भी बोला था, अगर आप x की जगह 0 रखो तो कांस्टेंट टर्म ही आंसर आता है, तो देखो कांस्टेंट टर्म 1 है पहले से, देखो तो सीधा भी आप बोल सकते थे, लेकिन यहाँ तो प्रोसेस हम बताना है तो बताएंगे। सो वी फाउंड p ऑफ 0 1, तो रिमाइंडर इक्वल टू 1, तो आप प्रोसेस तो समझ गई। अभी रही बात आपकी मिस्टेक की, तो मिस्टेक आपकी जो बेसिक रिलेटेड मिस्टेक है, आपका अगर बेसिक वीक है तो वो मिस्टेक आपकी पेंडिंग रहेगी, ओके। यहाँ थोड़ा अजीब सा है, नंबर 4 में देखो x + पाई, पहले तो x निकालो, तो मैंने x + पाई इक्वल टू 0 रख के, सामने 0 रखना है, हो सीधा 0 नहीं रखो तो x नहीं मिलेगा, गलत है, अगर मिलेगा तो भी वो मैथमेटिकली रॉन्ग है, सामने कुछ तो होना चाहिए ना। तो x इक्वल टू -पाई मिला, अभी मैंने वो -पाई सभी जगह रख दिया, ओके। कहाँ पर, x की जगह ब्लैंक ब्रैकेट बनाया, -पाई और नॉट ओनली पाई, तो पहले देखो -पाई क्यूब रहा, क्यू माइनस की साइन रही, ऊपर ओड डिग्री है, बाद में मैंने ओनली रेस टू ही किया, सेकंड में ब्रैकेट ब्रैकेट में ही रखा है, तो वहाँ पाई² पॉजिटिव बन गया, क्यू ऊपर इवन डिग्री है। बाद में मैंने वो 3 × -पाई, इसको मैंने ब्रैकेट ओपन किया, तो +- 3 पाई, ब्रैकेट ओपन करना मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का रूल +- और +1 ऐसे ही रख दिया, बस एक फॉर्मेलिटी बाकी है, वो ब्रैकेट ओपन करना बाकी है, तो वो भी मैंने कर दिया। लेकिन यहाँ कुछ हो नहीं सकता, आगे हम क्या लिखें, इसके आगे मान लो मुझे आगे बढ़ना है तो मैं नहीं आगे बढ़ सकता, पाई की वैल्यू नहीं रखनी हो, डोंट प्लेस वैल्यू ऑफ पाई, ओके। वो हम कहाँ रखते हैं, एरिया वॉल्यूम में, यहाँ पर कहीं पर नहीं, बस। तो यही हमारा लंबा सा आंसर है, क्योंकि वो सारी अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, सो नथिंग कैन बी डन, दैट सो मच लॉन्ग इज आवर आंसर, ओके। तो इसकी वजह से कंफ्यूज मत हो, वो जो भी दे हमें लिख देना है ऐसे प्रोसेस में। अभी देखो मैंने पहले बोला था कि नहीं, आप बोलेंगे सर अभी ये सारे सम में हम ओरली भी बोल सकते थे, देखो एक्स, सॉरी ये नेक्स्ट आ गया, हाँ यहाँ देखो x +1 थे तो x इक्वल टू -1 आप ओरली भी लिख सकते थे, x -1/2 है तो सीधा आप 1/2 लिख सकते थे, ऐसे सभी में आप लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे सम में थोड़ा आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। देखो यहाँ 5 + 2x है, यहाँ -5 नहीं रखेंगे, आप लीगली प्रोसेस करो डिवाइजर का 0 निकालने की, मैंने जो ब्लैक पेन में लिखा है नंबर 5 में वो, तो ये प्रोसेस यहाँ आपको करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि
आपको अगर ये ओरली नहीं हो रहा है तो ये करना ही पड़ेगा। ओके, आई जस्ट शो यू। जस्ट लुक एट दिस पार्ट। ओके, फाइंडिंग जीरो ऑफ डिवाइजर। व्हाट टू डू, जस्ट -5/2 आपको फाइंड करना है। कैसे? सामने जीरो रख के, तो पहले 5 को शिफ्ट किया, बाद में 2 को शिफ्ट किया। अभी -5/2 रखना है, वो खास याद रखेंगे आप, -5/2। ओके, मैंने रखा। रखने के बाद क्या किया, तो देखो क्यूब कर दिया, माइनस की साइन रहेगी, डिग्री 3 है ना, तो -125/8। बाद में मैंने ब्रैकेट रख के स्क्वायर पहले किया क्योंकि आगे कोएफिशिएंट था, तो प्लस बन गया 25/4। और दोनों का करना हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का, क्योंकि होल स्क्वायर है। साइन की मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर भी दोनों का करना है, सारा याद रखना है। तीसरे टर्म में मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, 3 5 जा 15/2। ऊपर नीचे कटिंग होता है तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहा, +1 ऐसे ही रखा। अभी एक फॉर्मेलिटी बाकी थी ब्रैकेट ओपन करने की, वो भी कर दिया, 75/4 बन गया। तो सारे काम खत्म। अभी ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो करो। इसके लिए फिर से वही प्रोसेस, एलसीएम लो, एलसीएम 8 आगे किया था ना हमने। पहले -125 को ऐसे रख दिया क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 8 है। सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में 4 है तो हमें ट्वाइस करना पड़ेगा दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर भी डबल हो गया। डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी डबल करके पहले से रख दिया है। थर्ड टर्म में अपॉन में 2 है, 2 4 जा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 15 4 जा 60 बन गया। इंटीजर को फ्रैक्शन बना दिया मैंने, बनाना ही पड़ेगा। डिनोमिनेटर देखो 1 है, मुझे 8 टाइम्स करना पड़ेगा, तो मैंने 8 टाइम्स ऊपर भी कर दिया, न्यूमरेटर में 8 बन गया ना। अभी सारे को मिला दो, तो प्लस नंबर 150 और 8 मिलकर 158 हो गया। वो भी बेसिक आपको पता है ना, सेम साइन वाले को कंबाइन करो पहले, वो हमारा एडिशन बोला जाता है। सेम साइन वाले को मतलब सारी प्लस टर्म को कंबाइन करो, सारी माइनस टर्म को कंबाइन करो, मतलब इसको एडिशन बोलते हैं। साइन रिटेन होती है, प्लस वाले की साइन प्लस ही रहती है, माइनस वाले को कंबाइन करो, साइन माइनस ही रहेगी। तो 158 बन गया, और वो 125 और 60 मिलके -185 में। अभी ऑपोजिट साइन का मतलब सब्ट्रैक्शन, और लास्ट में बिगर की साइन, वो आप सबको पता है। तो वहाँ 158 प्लस 185 माइनस, सब्ट्रैक्शन करना पर डिफरेंस लेना पड़ेगा, बिगर की साइन रखनी पड़ेगी, तो 27 आया, लेकिन माइनस, बस -27/8 हमारा आंसर। ओके, बाद में रिमाइंडर ऐसा करके वो लिख दो। तो समझ गए, एक ही प्रोसेस है, याद रखो कैसे करना है। रिमाइंडर का डिवाइजर का 0 रख के एक्स की जगह बिठा दो। ओके, वो हमारा मेन। अभी मेन क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, मेन क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। कुछ नया नहीं है, मेथड तो वही है, ओनली अंदर एक नया नंबर आया, अननोन। अभी तक क्या था, 1 2 ऐसे नंबर था, अभी ये आया। तो एक की वजह से आप नहीं कंफ्यूज हो गए कि ये होता या x होता या अननोन होता तो सम डिफिकल्टी ही होता है, ऐसा मत मानो। यहाँ जो भी है नंबर मान के आगे बढ़ो। तो x - a = 0, तो x = a बन गया। हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम में था ना, ऐसा बिल्कुल बना। देखो अभी सारे x की जगह ब्रैकेट बना के ये रखा है, ये रख के मैंने सिंप्लीफाई किया, तो a³ - a³ + 6a - a, a³ - a³ कट हो गया, सेम एंड ऑपोजिट साइन। ओके, बाद में रहा 6a - 1a, लाइक टर्म है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, तो 6a - 1a 5a, बस 5a इज रिमाइंडर। समझ गए, तो इसमें कुछ नया नहीं था। ओके, ऐसे ही होमवर्क, मैंने जितने सम सॉल्व किया है इतने ही सम होमवर्क में रखा है। तो होमवर्क देखो, पहले सम में मैंने बदल दिया है सारी बात, लेकिन ऐसे ही 5 सम मैंने दिया है, पॉलिनोमियल की बदल दी, p ऑफ x, x³ + 2x² - 3x + 1, और आपको 5 सब क्वेश्चन है। पहले डिवाइजर x - 1 है, बाद में 2x - 1 है, बाद में x + 2 है, बाद में 2x + 3 है, बाद में x है। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस, वो प्रोसेस तो बिल्कुल एक ही है, ये सारे सम मिला के एक ही समय ऐसा भी मान सकते हो, प्रोसेस सभी में एक सेम जैसी है।
पहले में आप x की जगह 1 रखोगे, दूसरे में 1/2 आएगा, तीसरे में -2 आएगा, फोर्थ में क्या आएगा -3/2। कैसे आप वो प्रोसेस करके देख लेना, सामने 0 रख के एक्सपेंड कर लेना। ऐसे सेकंड क्वेश्चन जैसा मैंने एक सेकंड भी बना दिया है, यहाँ भी आपको x - a से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर फाइंड करना है। ओके, तो पहले आप ये सारे फिर से समझ लोगे, वीडियो देखोगे, समझोगे, फिर भी एक बार ट्राई करोगे सारे सम करने की, खुद करोगे, बाद में होमवर्क करने की ट्राई करोगे। सीधा होमवर्क करने के लिए नहीं बैठना है, वही हमारी ऑलवेज होमवर्क करने की प्रोसेस है। किया हुआ, सोल्व किया हुआ सम समझ के पहले खुद करो, नोटबुक मोबाइल बंद करके, बाद में ये करो। ओके, तो ही होमवर्क ठीक से होगा, वरना होगा नहीं। और इसका आंसर मैं शाम तक भेज भी दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, आंसर सभी का क्या रहा है सारे सम का। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज मेन टॉपिक टू फाइंडिंग रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे फाइंड करना आप समझ गए। ओके, थैंक यू।